हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਕੰਜੂਗੇਟ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं बैक ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ? ਔਰ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਅਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਰਕ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਕੰਜੂਗੇਟ। ਹਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੰਜੂਗੇਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਫ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲਸ ਆਈਟਾ y, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੰਜੂਗੇਟ z ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ, z ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ? ਸਿਰਫ ਆਈਟਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਈਟਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? x ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ y। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈਟਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਆਈਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਲੱਸ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਈਟਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਈਟਾ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟਾ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆ ਵਿਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈਟਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟਾ, ਇਹ ਆਈਟਾ, ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ z ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੱਲਾ x ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਉਰੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ z ਪਿਓਰਲੀ ਰੀਅਲ ਹੈ तो कंजूगेट ऑफ z इज z, क्योंकि सेम वो बन जाना है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इमेजनरी पार्ट नहीं हैगा तो उदों कोई चेंज नहीं आऊगा। सेम इफ z इज प्योरली इमेजनरी, तो प्योरली इमेजनरी का मतलब की हो गया? ओनली आइटा, या आप ये कह सकते हैं 0 प्लस आइटा y। तो फिर कंजूगेट की हो गया?
आ हो गया या इनू आ लिख सकते हैं। तो फिर ध्यान नाल देखिए, अगर यह प्योरली इमेजनरी है, अपने को प्योरली इमेजनरी है, तो Z कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z। अच्छा, तो ये थोड़ा जिहा रिजल्ट्स बने। कुछ कहदियां प्रॉपर्टीज ने, ये भी एक तरह की प्रॉपर्टीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ईजी बनादियां ने। किवें? पहली प्रॉपर्टी है कंजुगेट दा कंजुगेट, तो वो एक्चुअली की बन जूगा, Z बन जूगा। देखो, अगर Z एक्स प्लस आइटा वाई है तो एक बार कंजुगेट किया, आइटा बदल गया, दोबारा कंजुगेट किया, फिर आइटा का साइन बदल गया, तो ये दोबारा घूम के की आ गया, Z आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज अगेन द कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी, Z1 Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्होंने मल्टीप्लाई करके कंजुगेट करिए या कंजुगेट करके मल्टीप्लाई करिए, आंसर ते कोई चेंज नहीं आऊगा। तुसी दो एग्जांपल्स कोई भी लेके जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मान लो मैं Z1 ए ले लिया, Z2 आपां ए ले लिया। लैफ्ट साइड तुसी कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, मैं एक सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स ले रहे हैं इत्थे। लैफ्ट साइड देखो, पहला आपां इहनूं सॉल्व करते हैं। मैं डायरैक्ट मल्टीप्लाई कर रहा क्योंकि ऑलरेडी तुसी मल्टीप्लाई सीख चुके हो। तो ए बन जाना अपने को AC माइनस BD, रियल पार्ट आप अलग कर देंगे, इमेजनरी आप अलग कर देंगे। उस तो बाद आपां कंजुगेट चाहिए, तो आप की करांगे, ओ आइटा का साइन बदल देंगे। ये लेफ्ट साइड आ गई। हुण राइट साइड, व्हाट इज अवर राइट साइड? आहा, तो Z1 हो गया A प्लस आइटा बी, ओदा कंजुगेट। Z2 हो गया A दा कंजुगेट। इनू सॉल्व किया, आ बन जाना है, आ बन जाना है, तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाना है, यही आंसर आ जाना है। तो यह प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की कहती है, तो लगता कितने देखो क्वेश्चन आ है, तुसी डायरैक्ट इनू आ यूज़ कर सकते हो। तो जिहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी है वो क्वेश्चन नू ईजी बनाने के काम आती। जिवें जिवें अगे क्वेश्चन आएंगे आप उस पर गल करांगे। सेम नैक्सट प्रॉपर्टी है, आह डिवाइड करके कंजुगेट करो या कंजुगेट करके डिवाइड करो, दैट इज द सेम थिंग। ये उमी आजू डिवाइड तो बाद फिर आप रैशनलाइज करांगे, फिर कंजुगेट करांगे, तो यह एको गल है। तो यह कुछ प्रॉपर्टी सी कंजुगेट दियां। हुण आप अगले ते चलते हैं, क्योंकि यह एक रिजल्ट इकट्ठा है जिहदे विच कंजुगेट ते मॉडुलस दोनों मिक्स होंगे, तो एक बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल रिजल्ट बनता है। नैक्सट है अपने को इसका मॉडुलस ऑफ कंप्लेक्स नंबर। मॉडुलस भी बोल लेंगे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल लेंगे हैं। तो व्हाट इज दैट? अगर Z कोई भी कंप्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, तो आ मॉडुलस Z का निशान है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हुण इत्थे एक कन्फ्यूजन एक्स वाई होंदी है, जिहड़ी होंदी है, क्योंकि अपनी सिंपल दा फंडा देखो, एक्स असल दे विच अपने कोल रियल पार्ट है, वाई असल दे विच इमेजनरी पार्ट है। देखो मैं उरे आइटा नहीं लिखिया, ये गल ध्यान रखनी है, मैं सिर्फ तो रियल ते इमेजनरी पार्ट की गल कर रहा। तो असल दे विच ये हो जू रियल पार्ट दा स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट दा स्क्वायर। आइटा नहीं लेना। एग्जाम्पल, Z आ गया -2 + 3 आइटा, तो मॉड Z मॉडुलस Z, रियल पार्ट हो गया -2 ओदा स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट हो गया 3, क्योंकि आइटा आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर गल कर चुके हैं, आइटा तक रिप्रजेंटेशन और दसदा इतने इमेजनरी पार्ट पे है। तो इमेजनरी पार्ट की आ गया 3 आ गया। इनू सॉल्व किया 4 + 9 कितना आंसर आ गया √13। होर एग्जाम्पल देखो, Z इज -3 - 4 आइटा, द मॉडुलस ऑफ Z मॉड Z, रियल पार्ट इज -3, इमेजनरी पार्ट इज -4। सॉल्व किया 9, ये हो गया 16,
√25 एंड आंसर इज 5। नैक्सट एग्जाम्पल कुछ होर ले लें आप, थोड़ी जी आप उस अकॉर्डिंग ले लें साइन कॉस वाली। हुण आ गया देखो सपोज रियल पार्ट किहड़ा है विदाउट वाइटा आ रहा, इमेजरी पार्ट किहड़ा है आ रहा। तो व्हाट इज मॉड z, रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट द स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर वो फॉर्मूले खुल जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनू सॉल्व किया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, आइडेंटिटी 10th क्लास दी है, 1 आ रहा 1 + 1 2। तो अगे इनू आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं इत्थे छड्ड रहा, वैसे अगे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर करेंगे तो फॉर्मूले होर भी सिंपलीफाई होगा, फिलहाल आप इन्हें इत्थे छड्ड रहे हैं। तो जो मॉडुलस है देखो कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर का वर्क है और रियल तो इमेजरी ते चलता है, गल याद रखनी है। डोंट गो विद ओनली XY एक प्रेजेंटेशन है, रियल मतलब विदाउट आइटा, इमेजरी मतलब विद आइटा। कोई भी रिजल्ट तुसी कंपलैक्स का करना है उहदे विच रियल ते इमेजरी नू माइंड दे विच लैके चलना। हुण इहदे कुछ प्रॉपर्टीज ने, प्रॉपर्टीज की ने इहदियां, फर्स्ट ये बड़िया इंपॉर्टेंट ने, कंजूगेट तो ज्यादा ये है क्योंकि ईजी बनाते क्वेश्चन किमें। देखो कहते दो कंपलैक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके मॉडुलस करो या मॉडुलस करके मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आऊगा। मैं सॉल्व करवा देना थोड़ा जा। दूसरी प्रॉपर्टी की कहती है डिवाइड करके मॉडुलस करो या मॉडुलस तो बाद डिवाइड करो, आंसर सेम है। आप एग्जाम्पल हुण मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा ईजी करने लई, थोड़ा पता लगू क्वेश्चन कितना ईजी बनता है। ठीक, लैफ्ट साइड सब तो पहला इन्हां दोहां की मल्टीप्लाई करनी है आप। देखो आ कितनी सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा -12 आ गया। नाउ व्हाट इज मॉड, रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट द स्क्वायर, 196 + 25 221। ये लेफ्ट साइड आ गई। देखो ओनली कितना सॉल्व करना पिया। राइट साइड देखो मीन्स पहला कॉम्पलैक्स नंबर लिया ओदा मॉडुलस, दूसरा कॉम्पलैक्स नंबर लिया ओदा मॉडुलस। ए हो गया रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजरी, ये भी हो गया रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजरी। सॉल्व करोगे मैं डायरेक्ट लिख रहा रजे आ गया। तो देखो केड़ा ईजी है, इस पहले आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर रियल इमेजरी अलग अलग करने पैणगे, फिर मॉडुलस करना पड़ेगा, तो सीधा हो गया। सेम ये चीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ का बेनीफिट होंदा है कि जो क्वेश्चन है ना बहुत ईजी बन जाता है, बड़ा स्कोरिंग बन जाता है अगर तुम प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। हुण इहदा दोहां दा रिजल्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिहड़ा कंजूगेट ते मॉडुलस को यूज़ करके आंदा है। क्योंकि अगर तुम ये रिजल्ट यूज़ करना सीख गए तो जेडे तुम एक डेढ़ पेज के क्वेश्चन करोगे विद इन 2 और 3 लाइन तुम उन्हें सॉल्व कर सकते हो। किवें और रिजल्ट की कहता है आ रिजल्ट है, कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर लो, कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर लो, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ z x + ਆਈਟਾ y ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਈਟਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ z × its ਕੰਜੂਗੇਟ। तो व्हाट इज द रिजल्ट, z हो गया z, देखो z x + आइटा y कंजुगेट हो गया x - आइटा y। दिस इज द फॉर्म ऑफ a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, आइटा स्क्वायर y स्क्वायर। हुण आइटा स्क्वायर की हुंदा, देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू की हुंदी है +1 सॉरी -1 माइनस माइनस प्लस, तो ए हो गया। ठीक, दिस इज लेफ्ट साइड। नाउ राइट साइड इज
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ z ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ z ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਆਈਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कैंसल, both sides are equal, both sides are equal। तो आ रिजल्ट है। हुण क्वेश्चन इनू यूज किवें करना है, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखी है अपने एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को यही नहीं पता लगता कि एक रिजल्ट है इनू यूज किवें करना है, क्वेश्चन नू किवें ईजी बनाना है। आपां गल करते हैं, देखो मतलब आपां सिंपल भी क्वेश्चन नू सॉल्व करांगे, ठीक है, ते ये रिजल्ट दे नाल भी क्वेश्चन नू सॉल्व करांगे। हाउ विल डू दैट क्वेश्चन? एग्जाम्पल देखो एक, इफ x प्लस ओआइटा y इज इक्वल टू a प्लस ओआइटा v अपॉन c प्लस ओआइटा d, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दोनों तरीके करते हैं। पहले जनरली किवें किया जाता है क्वेश्चन, मैं पहला उसते समझाना। आ डिवीजन फॉर्म च है, तो जो डिवीजन फॉर्म च होंगे आप रैशनलाइज करते हैं, प्रीमेकन करते हैं, यही करांगे ना। हुण सॉल्व करते हैं, मैं डायरैक्ट लिख रहा सॉल्व करके। क्योंकि तुसी ऑलरेडी इन्हां दी मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरैक्ट लिख रहा। आ गया रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजनरी पार्ट अलग करते आप, ठीक, इनू अलग करता रियल नू, इमेजनरी नू अलग करता। क्योंकि फर्स्ट लैक्चर च आपां गल कीती हुई है, पिछले लैक्चर रियल तो इमेजनरी अलग अलग हो जाएंगे। आ रहा रियल तो एक्स आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दिस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? इमेजनरी पार्ट दोनों अलग अलग हो गए। क्योंकि सब तो पहला काम की किया है, ਆਪਾਂ राइट साइड ਨੂੰ सॉल्व करके ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ अलग अलग। ਇਹ क्वेश्चन जनरली है किवें सॉल्व करवाया जाता है, हाले मैं प्रॉपर्टी की गल नहीं कर रहा, तो थोड़ा पता लगो फिर डिफरेंस का। क्योंकि अगर मैं डायरैक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेंदा तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ही नहीं होनी सी, प्रॉपर्टी क्यों यूज करना है। डिनोमीनेटर सेम, ब्रैकेट्स खोल दिया, आइडेंटिटी ए स्केयर बी स्केयर वाली 2ab, इत्थे भी आइडेंटिटी खुल गई अपनी, ठीक, आ कैंसल। उस तो बाद इधरों देखो, इन्हां चों सी स्केयर कॉमन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर बच गया, इथों डी स्केयर कॉमन, बी स्केयर प्लस ए स्केयर बच के। देखो कितना लेंथी जा रहा है क्वेश्चन। नो डाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ए स्केयर बी स्केयर कॉमन, ये जिवें आपां 9th क्लास गुणनखंड करते होंगे, फैक्टराइज करते होंगे, पिछे आ बच गया, एक पावर कट गई, तो आ अपना आंसर आ गया। यह है जनरली आपां क्वेश्चन नूं किवें सॉल्व करना है। हुण मैं गल कर रहा प्रॉपर्टी ते विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देखो ध्यान नाल, हुण आपां ऑल्टर चल रहे हैं, आ Z है, Z कंजुगेट चाहिए, ठीक, दोनों साइड्स लिख रहे हैं मैं। हुण Z कंजुगेट जो करांगे, आ हो गया, साइन चेंज हो गया, इत्थे भी आपां प्रॉपर्टी की है, ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएंगे साइन। याद है प्रॉपर्टी कंजुगेट की? याद करो, देखो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। उदों बाद इन्हां दोहां दी की चाहिए? मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करती, तो देखो हुण अपने कोल की आ गया, इन्हां दी आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इन्हां दी
आपस हो गई। ठीक हो गया ना? की किया सिर्फ मैं की किया है, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है, कंजुगेट ले लिया। हुण उस बाद रिजल्ट आ किहदे इक्वल है, दिस ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हो गया, ए एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस वाइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो आंसर अपने को आ गया। 2 लाइन क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। कंफ्यूज हो गए ना, की हो गया देखो दोबारा की किता, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਚ, ਆ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਵਾਈਟਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਗਈ a + b a - b, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆ ਦੱਸੂਗਾ, ਆਹ ਗਿਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, x + y ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰੂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ if a + y is this, then find a square + b square। ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦੋ, प्लस माइनस माइनस प्लस। पहला स्टेप कंजूगेट करता, इन्हां दोहां दी मल्टीप्लाई, लैफ्ट विद लैफ्ट, आ तो कट ही गए, सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं। ये हो गया, आइडेंटिटी लग गई, आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, थोड़ा आंसर आ गया। तो सिर्फ 2 लाइनों के विच आ जाओ। मैं 2-3 क्वेश्चन होर लिख रहा ताकि तुहानू आइडिया हो जाए इनू किवें यूज करना, क्योंकि अपना ही अज का लैक्चर सी। एक क्वेश्चन होर है, देखो कहते P + y q = a + y² upon 2a - y, then prove that p² + q² = a²1² upon 4a² + 1। आ नैक्सट एग्जाम्पल है। किते कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं हैगी, इनू उस अकॉर्डिंग सॉल्व करो। किवें आ गया, देखो अपने को आ दिता है, आपां p² q² प्रूव करना है या फाइंड करना है। कंजूगेट प्लस दा माइनस माइनस दा प्लस, इन्हां दोहां दी मल्टीप्लाई करती, इन्हां दोहां दी मल्टीप्लाई करती, दिस इज देयर। ये डायरैक्ट लिख रहा हूं मैं, p² + q²। इधर देखो, इनू कॉमन कर दो, स्क्वेयर कॉमन हो गया, नीचे दी मल्टीप्लाई, सेम डिनोमीनेटर दी मल्टीप्लाई, a + b a - b। थोड़ा ਇਹਦਾ क्वेश्चन है ना इस प्रॉपर्टी का, सिर्फ 2 लाइनों के विच सॉल्व हो जाना है, अदरवाइज ये बहुत लेंथी चला जाना है। y² माइनस 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 प्लस, y² माइनस 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 प्लस, तो ये आंसर 2 लाइन सॉल्व हो जाना है। तो दोस्तों यह सी अपना अज का टॉपिक, कंजूगेट, कॉम्पलैक्स ते उहदे नाल कंसर्नड प्रॉपर्टीज। थैंक यू।